आदाब नाजरीन, रुफत नसीम के साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। Midwest Hospital and Medical Institute. हमजा कलेक्शन, Hamza Collection. ग्लोबल वॉलपेपर, Global Wallpaper. ICALS, Under ICALS EduScale Private Limited. स्कूल ऑफ कंपटीशन, School of Competition under CBSE Board. विंग्स इन्फोटेक। Wings Infotech लेकर आया है। सीधे करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। आज आसनसोल में छठवें बोई मेला का आगाज हुआ। वजीर सदुकुल्ला चौधरी, वजीर मलाय घटक, डिप्टी मेयर वसीमुल हक व दीगर MIC ने एक साथ बोई मेले का इफ्तिताह किया। बोई मेला 2023 कमेटी के जानिब से इस मौके पर दीगर स्कूली बच्चों ने और कमेटी के मेंबरान ने किताब से मुतल्लिक लोगों में बेदारी लाने के लिए रैली निकाली। वहीं वजीर सदुकुल्ला चौधरी ने अपने तकरीर में कहा कि भले ही आज लोग मोबाइल, टीवी या इंटरनेट से फायदा ले रहे हैं, पर आज भी किताब का कोई बदल नहीं है। यहाँ मौजूद वजीर मलाय घटक व डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने इस बोई मेले के इनकाद के लिए वजीर सदुकुल्ला चौधरी का शुक्रिया अदा किया और अपनी अपनी बातें रखी। वहीं वजीर मलाय घटक ने बताया कि इस किताबी मेले में तकरीबन 100 स्टॉल लगाए गए हैं। नाजरीन, बताते चले कि ये बोई मेला एक हफ्ते तक चलेगा। আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এখানে রাজ্য সরকারের বরিষ্ঠ মন্ত্রী শুধু নন, তিনি বই পাগল মানুষ। আসানসোলে বইমেলার জন্য তার প্রেরণা আমাদেরকেও বাধ্য করেছে আমরা সেখানে তার সামনে নতজন হয়েছি না বইমেলাটা হবে। তিনি শুধু নিজের কথা না ভেবে আসানসোল মানুষের বইয়ের সঙ্গে যে সম্পর্ক সেটা তিনি বারবার ভেবেছেন। এই নিয়ে জেলা ভাগ হওয়ার পরে বোধহয় 55ষষ্ঠ বইমেলা অনুষ্ঠিত হলো। এখানে আমাদের প্রিয় মেয়র অমরনাথ আছেন, ডেপুটি মেয়র অসীমুল হক আছেন, সুভদ্রা বাউরি সভাপতি, আপনার জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছেন, কয়েকজন প্রিন্সিপাল আছেন, আর এখানে পৌর নিগমের সব তারকারা কাউন্সিলররা বসে রয়েছে। তাছাড়া আমাদের দলীয় সতীর্থ বন্ধু সহ আপনারা আছেন। বই এমন একটি জগৎ, বই বাদ দিয়ে সভ্য সমাজ বাঁচতে পারে না। এটা আমাকে, আপনাকে তথা সমাজকে একেবারে সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ডিজিটাল এসব থাকবেই। আগে টিভি চ্যানেল ছিল, লোকে টিভির দিকে দৌড়াতো, এখন টিভি ফের আপনারা আমার সামনে হ্যান্ডসেট, আগামী দিনে কোথায় দাঁড়াবে সেটাও বলা মুশকিল। বইয়ের কিন্তু কোনো বিকল্প নেই। এই বই হলো আমাদের জাতীয় জীবনের পাথেয়। মানুষের শরীরকে বাঁচাতে গেলে পানীয় জল, খাদ্যের প্রয়োজন হয়, বিবেক বুদ্ধিকে জাগ্রত করতে গেলে বইয়ের প্রয়োজন। আমি প্রথমেই বললাম যে এবারের বইমেলা, জেলা বইমেলা ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে রানীগঞ্জে, কিন্তু যেহেতু প্রতি বছর এই পোলো গ্রাউন্ডে আমরা আসানসোলবাসীর জন্য বইমেলা করে এসেছি, আমি ব্যক্তিগতভাবে মাননীয় মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীকে অনুরোধ করেছিলাম যে যদি আসানসোলেও একটা বইমেলা করা যায়, তো তিনি রাজি হয়েছেন, অনুমতি দিয়েছেন এবং সেই বইমেলার আজকে উদ্বোধন হচ্ছে। আসানসোল বইমেলায় এবারে 100খানা স্টল হয়েছে। ইতিমধ্যেই সমস্ত স্টল কিন্তু বুকিং হয়ে গেছে, 100টাই বুকিং হয়ে গেছে। আমরা অনেককে বুকিং দিতে পারিনি, অনেকে চেয়েছিলেন এই বইমেলায় আসতে,
কিন্তু তাদের জায়গা দিতে পারেনি, যেহেতু খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই বইমেলাটা আমাদেরকে আয়োজন করতে হয়েছে। দেখুন, বইমেলা আমাদের এই শহরে কিন্তু অনেক বছর ধরে হয়। আগে একটি সংস্থা, তারা ইস্টার্ন রেলওয়ে হাই স্কুলের গ্রাউন্ডে বইমেলা করতেন। পরবর্তীকালে বেশ কিছু বছর পোলো গ্রাউন্ডেও করেছিলেন, কিন্তু 2011 পরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব নেওয়ার পরে যখন সরকারিভাবে জেলায় জেলায় বইমেলা শুরু হয়, সেই বইমেলা মানুষের যে চাহিদা, বইয়ের চাহিদা, সেটা মেটাতে যেমন সক্ষম হয়, তেমনি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে যায়। এই বইমেলার যিনি প্রাণপুরুষ এবং যার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই বইমেলা আমরা আসানসোলে পেলাম, মাননীয় শ্রী মলয় ঘটক মহাশয়, এবং সেই সঙ্গে আমাদের सबसे पहले हम आसनसोल के बासिंदगान शुक्रगुजार हैं मंत्री मुलाय घटक साहब का, जिन्होंने जिला मेला रानीगंज के बाद आसनसोल की सरजमी पे आसनसोल का यह किताबी मेला का इनेकाद किया। हम सब शुक्रगुजार हैं सिद्दीकुल्ला चौधरी साहब का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त आज के इस मेले के इफ्तिताह के लिए दिया। याद हो कि भगत सिंह मोड़ और इसके आसपास के इलाकों में चल रहे दुकानों को नोटिस जारी किया गया है। अगर दुकानों और नोटिस के वक्त की मियाद की बात करें तो दुकानें 40 से 50 साल पुरानी और नोटिस में दिया गया वक्त सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का। जाहिर है कि इस नोटिस ने दुकानदारों की नींद उड़ा रखी है। ऐसे में ये लोग कारपोरेशन का चक्कर काट रहे हैं। कल भी इन लोगों को कारपोरेशन में देखा गया और आज यानी 3 फरवरी को भी। पर जब हमने इनसे बात की तो इनका कहना है कि हम लोग मेयर से मुलाकात करने आ रहे हैं, पर मुलाकात नहीं हो रही और यही वजह है कि बात बन नहीं पा रही है। इनका कहना है कि हम मेयर से मिलकर अपनी बातें रखना चाहते हैं। चूंकि ये मुद्दा आम नहीं है, क्योंकि सैकड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी के नेता शाह आलम से भी बात की, जिस पर इनका कहना है कि बंगाल की मौजूदा सरकार एक ही तरह के मसले पर 2 तरह के रुख कायम कर रही है। नाजरीन, ये अल्फाज शाह आलम के नहीं है, पर इनके बयान का मतलब यही निकलता है। आइए तफसील से डालते हैं इस रिपोर्ट पर एक नजर। একটা নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, সেটা 3 দিন ডেট দেওয়া হয়েছে। 3 দিনের মধ্যে জায়গাগুলো খালি করে দিতে হবে, দোকানগুলো সরিয়ে নিতে বলেছে। ঠিক আছে, তা আমরা এসেছিলাম মেয়র সাহেবের সাথে একটু দেখা করতে, যাতে আমাদের এই পরিস্থিতি যেটা সৃষ্টি হয়েছে হয় দোকানগুলো উঠিয়ে নেওয়ার জন্য, এবং আমরা হয়তো এর উপরেই আমাদের সকলের সংসার নির্ভর করছে, যারা দোকানদারি করছি আর কি। হ্যাঁ, সবারই সংসার নির্ভর করছে। তাই আমরা এসেছি যে মেয়রের সাথে দেখা করতে, যদি তিনি আমাদের কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেন আর কি। হ্যাঁ, সেই হিসেবে মেয়র সাহেবের সাথে আমরা দেখা করতে এসেছি। আর আমার সেলুন বারবার, ঠিক আছে, আমার नाम मिहिर परामानिक। हम लोग आए, हम लोगों को दिया गया है नोटिस 3 तारीख को आप लोग जगह से अपने अपने दुकान को जगह से इलीगल तरीके से आप लोग बैठे हुए ये खाली कर दीजिए। और उसके बाद हम लोग कल भी आए थे 2 तारीख को, आज 3 तारीख को भी आए हैं
और मेयर साहब को हम लोग कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम लोग बोले थे कि हम लोग आ रहे हैं आपसे मुलाकात करने के लिए, तो कल भी आए, आज भी आए, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पा रहा, इसलिए कोई बात हम लोगों की बन नहीं रही है। हम लोगों को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग कौन सा रास्ता लें। और उसके बाद मेयर साहब तक हम लोग ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग आपसे एक बार मिल करके बात करना चाहते हैं कि हम लोग आपके तक बात पहुंचा करके और कुछ बात ले करके अच्छी बात हम लोग खुश हो जाएं। हम लोग यही उम्मीद रखते हैं सब दुकानदार मिल करके। क्या चीज़ की दुकानें हैं आप लोगों की? हम लोग किसी की रुई की दुकान है, किसी की चाय की होटल है, किसी की मीट की दुकान है, किसी की ये फास्ट फूड का है, किसी की ये चूल कटिंग सैलून है। ये सब तमाम दुकानें एक लाइन से है, मोटरसाइकिल गैरेज वगैरह सब कुछ है। देखिए, एक बात तो समझ में नहीं आती है कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पश्चिम बंगाल की जो ये सरकार, आज रेलवे का जो रेल पार्क का इलाका, रेलवे के तरफ से बार बार नोटिस दिया गया। वहाँ पे यहाँ के मौजूदा एमएलए मंत्री मलाई घटक साहब ने वहाँ पे जगह जगह मीटिंग कर कर ये कहा है कि अगर यहाँ पे बुलडोजर चलेगा तो सबसे पहले मैं खड़ा रहूँगा, अगर यहाँ पे रेलवे किसी भी तरीके की यहाँ पे तोड़फाड़ करेगी तो उसके सामने सबसे पहला मैं खड़ा रहूँगा। आज अफसोस होती है कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो सिर्फ 3 दिनों का नोटिस पे ये कहती है कि 3 दिनों के अंदर में अगर जो लोग 40 साल 50 साल से वहाँ पर अपनी छोटी छोटी दुकान चलाकर रोजगार कर कर अपना घर संसार चला रहे थे, तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि यहाँ से हटा दिया जाएगा, वरना कॉरपोरेशन अपना कार्रवाई करेगी पुलिस के साथ। आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जिस वक्त तृणमूल कांग्रेस का बोर्ड नहीं था, चेयरमैन साहब अमरनाथ चटर्जी जी, आपको मालूम होगा, उस वक्त भी वो काउंसलर रहे थे। विपक्ष के जब वो काउंसलर थे, जब आसनसोल के फुटपाथ या आसनसोल का किसी इलाके में कोई भी अगर कॉरपोरेशन अगर कार्रवाई करती थी, जो लोग दखल कर कर बैठे थे, तो उसके पर यही चेयरमैन साहब सामने आकर ये कहते थे कि पहले उसको सही जगह देना पड़ेगा, हॉकरों को बसाया जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज फिर कॉरपोरेशन में वो चेयरमैन साहब है, मेयर साहब है, तो ये सोचना चाहिए कि जो लोग वहां पे अपना रोजगार चला रहे, पहले उसको बनाकर सही ढंग से उनको जगह दिया जाए, तब जाकर तोड़फाड़ होना चाहिए। आज क्यों नहीं हो रहा है ये? घर और ऑफिस की सुरक्षा की फिक्र से अब आप हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट सीसीटीवी सॉल्यूशन। वी सप्लाई, वी इंस्टॉल एंड वी रिपेयर विद गुड सर्विसेज। हमारे यहाँ HPIP कैमरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, बेबी मॉनिटरिंग, फायर अलार्म सिस्टम, वीडियो डोर फोन और भी बहुत कुछ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही हमारे यहाँ आए और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाए। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट आसनसोल बस स्टैंड। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। अगर आप है परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर।
अगर जॉब की तलाश में आप हो गए हैं परेशान और पाना चाहते हैं एक जॉब 6 या 12 महीने के अंदर, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड लीगल सर्विसेज अंडर ICALS एडुस्किल प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है आप सभी के लिए फुल टाइम सर्टिफिकेशन कोर्स विद जॉब गारंटी। जी हाँ, IT एंड वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अलावा टेली प्राइम, GST, इनकम टैक्स, P-टैक्स, TDS, MS ऑफिस, साफ फीको जैसी कई सारी कोर्सेज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। EMI फैसिलिटी के अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है भांगापाची ऑपोजिट ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। Need-based Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280252। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। যিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আসানসোলের প্রথম নাগরিক নকরি রামকৃষ্ণ রায়, তার একটা মূর্তি যাতে কালীপাহাড়ি গেটের সামনে আসানসোল যে ঢুকছে ওয়েলকাম আসানসোল, সেখানে আমরা একটা মূর্তি তৈরি করার জন্য কর্পোরেশনকে আবেদন জানাতে এসেছি। তার জন্য একটা ডেপুটেশন আমরা মেয়রের হাতে তুলে দেবো। তার জন্য আজকে আসানসোল কর্পোরেশনে এসেছি আমরা সবাই মিলে। আমাদের প্রেসিডেন্ট রয়েছেন সর্বভারতীয় এবং আমি হচ্ছি সর্বভারতীয় সম্পাদক উগ্রক্ষত্রিয় মহাসভা থেকে। আমরা সবাই এসেছি আগুরি সমাজ থেকে। আর আমরা আজকে দেখছি আমরা যাতে পরবর্তীকালে যাতে এই মূর্তিটা হয় তার আবেদন করব এবং পরবর্তীকালে যাতে যে আবেদন আমরা রাখবো আসানসোল কর্পোরেশন এবং রাজ্য সরকারের কাছে, তারা যাতে বিনীতভাবে এই আবেদন স্বীকার করে তার জন্য আমরা একটা পিটিশন আজকে দেব। আমার নাম রাজ রায়, সর্বভারতীয় সম্পাদক উগ্রক্ষত্রিয় মহাসভা। ये IT ये लोग कैसे जानते हैं जागरण कौन चीज? अभी हमको बोला ये चंदन, हम वहाँ से निकल रहे थे सचिन राय से। हाँ वहाँ तो बोला होगा जाना DMO पे तो सुन लिया होगा।
कोई मत देना, हम काहे का देंगे, हम खाली बस एक ही आदमी को देना तो वो देना चंदन को, चंदन से भैया चाहे এটা আমাদের গত যে আমরা মিটিংটা করেছিলাম সেই গত মিটিংয়ে আমাদের হয়েছিল যে আসানসোলকে জ্যামজট মুক্ত করতে হবে, আসানসোলকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যেভাবে দোকান ফোকানগুলো আছে কতটা এগিয়েছে সেটার রেজাল্ট আমরা দেখছিলাম। তো সেটা নিয়ে মিটিং হলো এবং আগামী দিনে যেভাবে চলছে তাতে আসানসোলকে সুন্দর করার জন্য সবার সমর্থন চাই। অটো টোটো নিয়ে মিটিং হয়েছে, অটো টোটো অলরেডি তো আমরা একটা রুট বন্ধ করেছি এবং আগামী দিনে কীভাবে যাব সেটা যেগুলো ডিলার আছে সেই ডিলারগুলোকে আমরা বন্ধ মানে অলরেডি রেড চলছে, তো এরপর নেক্সট করা যাবে। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक, लेकिन ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहें खबर आसनसोल के साथ। हमें लाइक करें, हमारे लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता पाएं ताकि हम अपने काम को और बेहतर तरीके से आपके सामने पेश कर सकें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।